हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Please give me 1 minute. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा। वेलकम टू the 256th episode of Bhagavad Gita. A little bit trouble in audio and video quality today. Uh, it is a new laptop because the old laptop stopped working. A new laptop was given. A little bit of trouble with getting adjusted. Anyway, we'll move on. Last class. Hare Krishna. Hare. If I'm not audible, you can put in the chat. But I'm not audible. Hare Krishna. Hare Ram. Hare Hare Krishna. So we'll move on. So last class we stopped at shloka number 56. So the shloka was Sarva Karmani Api Sada Kurvanu Mad Vyapashrayah Mat Prasadadavapnoti Shashvatam Padam Avyayam. So in Zoom there is a new setting now where the person gets highlighted, person taking the session, and the background gets a little bit dim. So if it is appearing blur, the background, it is because it's intentionally kept like that. The highlight is on the person speaking. Let me know at the end of this class whether this setting was okay. Otherwise, I will go back to the previous setting where the background, everything also will be visible clearly. Otherwise, the tendency to think is something is wrong with the camera and there is blurring of the background. So the translation was, though engaged in all kinds of activities, sarva karmani apisada, my devotee, under my protection, mat prasadad, so under his protection, under his devotee, what is he doing? He reaches the eternal and imperishable abode by my grace. Shashvatam padam avyayam. So prasadad means by mercy. अब आप नोती कैसे एक भक्त गोलोक धाम पाएगा भगवान की प्रसाद से, by the mercy of the Lord. And it's not possible simply by our gymnastic endeavors. तो हम भगवत धाम और भगवान को कैसे पा सकते हैं? पिछले सत्र का श्लोका हमने ये कंक्लूड किया था कि भगवान की दया से हमें भगवान की भक्ति और भगवत धाम ये सब मिलेगा. सो is always 24 hours 100% engaged in activities under the direction of the Supreme Lord. तो भक्त का लक्षण क्या है? प्रोपर ट्रांसलेशन में देते हैं माई डिवोटी. कृष्णा इज वेरी क्लियरली टेलिंग मेरे भक्त से ही हो पाएगा. क्या हो पाएगा?
सर्व कर्माणि अपि सदा, सारे कार्य वो करेगा, लेकिन वो कृष्णा की संतृप्ति के लिए करेंगे। So he is always 24 hours, 100% engaged in activities under the direction of Supreme Lord. So criteria, devotee कौन है? He is always 24 hours, सदा 24 घंटे 100%, 100% engaged in activities. तो सर्व कर्माणि अपि सदा, तो वो कार्य निरत होता है, लेकिन कैसे कार्य करता है? अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की जो बोधन है, प्रवचन है, भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवत गीता, अंडर दैट इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू एक्ट। So this is what a devotee is. So to a devotee who is thus engaged in Krishna consciousness, the Lord is very very kind. ऐसे भक्त के ऊपर भगवान असीम कृपा, असीम दया करते हैं। So we'll move ahead, and Krishna, and he is guaranteed entrance into Krishna लोका। ऐसे भक्त को भगवान ने आश्वासन दिया कि वो अपना धाम प्रवेश करेगी, गोलोक वृंदावन धाम जो आध्यात्मिक लोक में है, उसमें वो प्रवेश पाएंगे। So we'll start with today's shloka. Today we're going to start with shloka number 57. चेतसा सर्व कर्माणि, काम तो कर रहा है, लेकिन कृष्ण अभी बोलने वाले हैं कि what is the mode in which he is going to work. He is working under the instructions of the Lord. And what is the mode? चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। वेरी इंटरेस्टिंग। हमने बहुत सारे योगा के बारे में हम जानते हैं, भक्ति योगा, अष्टांग योगा, ध्यान योगा, कर्म योगा, and there is a new word being introduced here by Krishna. Although it's not a new word, but in the course of our Bhagavad Gita discussion, Krishna is introducing this word Buddhi Yoga. Dadami Buddhi Yogam Tam, it already told. Okay, and now he's coming to that. That Buddhi जो मैंने दिया है, Dadami Buddhi Yogam Tam, Upashritya. He takes shelter of that yoga. He is not going to, and he is not going to involve in any other type of yoga. Buddhi Yoga Upashritya. Machchitta Satatam Bhava. So let's read the translation. All translations and purport by His Divine Grace, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So how should one act? That's the theme of today's session. आज हमें कृष्णा समझाने वाले हैं। प्रभुपाद भी बहुत सारे पर्पट्स में ऑलरेडी हमें समझा चुके। प्रभुपाद डजंट वेट फॉर कृष्णा टू कम टू दिस पॉइंट। बहुत सारे पर्पट्स में, भावार्थ में प्रभुपाद ने हमें समझा दिया। अभी कृष्णा की बारी है, एंड प्रभुपाद ऑल्सो इज गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। चेतसा सर्व कर्माणि, इन ऑल एक्टिविटीज मयि सन्न्यस्य मत्परः, depend on me, just depend on me. So again, Mahamanusmara Yudhyasa, the concept of remember me and fight, what is advocating to Arjuna. ये हमारे लिए भी आ गया। चेतसा, because he's telling a devotee will do it. अभी केवल अर्जुन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। Only Arjuna he is not talking of, he is now talking about a devotee. Devotee is already we have talked about सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण मद व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। And now he's telling चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। फिर बोल रहे हैं बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। सततम, not 10 minutes, not 2 hours। भगवान की पूजा क्या आप हरे कृष्णा करते रहते हैं पूरा दिन? 10 मिनट करना चाहिए। ऐसे बोलने वाले के लिए एक सवाल है। कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं, व्हाट?
In such devotional service, be fully conscious of me. Macchitta satatam bhava. Be always engaged in Krishna consciousness. सदा, हमेशा, चौबीसों घंटे आप कृष्ण भावनामृत में स्थित हो। और कृष्ण भावनामृत भक्त क्या करता है? We have already learned the three factors. Always 24 hours working for the pleasure of Krishna in under the directions of Krishna. So when we take shelter of spiritual master, we are directly taking shelter of Krishna. It's not indirectly. We are directly taking shelter of Krishna. So in all activities, just depend on me. सारे कार्य में मेरे ऊपर निर्भर रहिए. Even in our Sunday session, which I took, don't worry, chant Hari. I highlighted the point that just depend on me. Do your work, but depend on me. Don't depend on your intelligence. Don't depend on your strength. अपने शक्ति, अपने बुद्धि, इसके ऊपर निर्भर मत रहिए. बुद्धि उपयोग कीजिए, शक्ति उपयोग कीजिए, लेकिन निर्भर किसके शक्ति पे होना है, निर्भर किसके बुद्धि में होना है? वद बुद्धि पे. तो बुद्धि योगा इज रिलाइंग ऑन द बुद्धि ऑफ कृष्णा, रिलाइंग ऑन द बुद्धि ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. नॉट बुद्धि योगा डजंट मीन अच्छा मुझे बुद्धि उपयोग करना है. जी नहीं. This Buddhi Yoga means rely on Krishna on his intelligence, on his judgment, on his strength, on his mercy. But मयि संन्यस्य मत्परः चेतसा सर्व कर्माणि. लेकिन कार्य आपको करना पड़ेगा. अर्जुन को नहीं बोल रहे कि बुद्धि योगम उपाश्रित्य केवल चिंतन करो, नहीं बोल रहे, कार्य भी करो बोल रहे. क्योंकि तुम योद्धा हो, तुम्हें तो युद्ध लड़ना होगा, और धर्म युद्ध है, तुम्हें तो लड़ना ही है. तो फिर अभी बोल रहे, वर्क ऑलवेज अंडर माई प्रोटेक्शन मत पर, मेरे बारे में. मई संन्यास्या, संन्यासा मीन्स 100% रिलाइंग ऑन कृष्णा, ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा. गोप तृप्ते वारणम, यही असली संन्यास है. सैफरन ड्रेस पहन के, दाढ़ी छोड़ के, जटा रखना संन्यास नहीं है. वैसे एक सन्यासी ऐसे हो सकता है, लेकिन सब लोग जो ऐसे हैं, नॉट एवरीबडी हु इज हैविंग जटा, नॉट एवरीबडी इज हैविंग दाढ़ी, नॉट एवरीबडी इज हैविंग saffron robes is a sannyas. But most of the sannyasis have this when they go from vanaprastha to sannyas. लेकिन संन्यास का असली मतलब क्या है? 100% कृष्णा के ऊपर निर्भर रहना. गोप तृप्ते वारणम, ये संन्यास है. So even a householder wearing white dress, seemingly involved in all household works, can also be a sannyasi in his mindset, in his activities. How? Because mat paraham is always doing it for Krishna, and is taken shelter of the intelligence, strength, judgment, instruction of Krishna. Mat chitta satatam bhava. Be fully conscious of me. Fully. Satatam. Mat chitta. Being always under the shelter, being fully Krishna conscious. So we'll read the purport. So the purports now are quite elaborate. We will do it nicely. The last few purports now, because it's bringing about the sense of Bhagavad Gita. When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. तो जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वो अपने आप को प्रभु नहीं समझता है. लेकिन विस्कॉन में सब लोगों को हम प्रभु कहते हैं. ये हमारी कॉन्शियसनेस के लिए. लेकिन जो व्यक्ति जिसको हम प्रभु बोल रहे हैं, वो मक्खी घूमना नहीं चाहिए. हम सबका दास है. जो हमें प्रभु बुला रहे, हम उनका भी दास. I might be a preacher. I might be giving you all this. I might be sharing all this knowledge, making you participate in this knowledge sharing program. But I am your servant. Yes, you are all calling me as Prabhu. But मेरा consciousness क्या होना चाहिए?
मैं इन सब का दास हूँ, मुझे इनका सेवा करनी है। बट एज ए उपाधि एंड एज अ कन्वेंशन, मुझे वो पोजीशन लेना पड़ेगा जहां पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे पाऊंगा। तो इफ आई कीप thinking myself as only dasa, I will not be able to give you instruction. I should know that मैं कैसा दास हूं, मैं इंस्ट्रक्टिंग दासा हूं। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला दास हूं। मेरा सेवा क्या है आपके लिए? इंस्ट्रक्शंस देना। इंस्ट्रक्शंस मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं, नॉट माई इंस्ट्रक्शन। जो इस पुस्तक में कृष्णा ने दिया है और इसके भावार्थ में जो प्रभुपाद जी ने दिया है, वो इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुंचाना। दैट वे आई एम योर इंस्ट्रक्टिंग मास्टर, आई एम योर इंस्ट्रक्टिंग सर्वेंट, आपका सेवक हूँ। सो दिस शुड बी माई माइंड सेट। अदरवाइज यही कारण है, लोग कृष्ण भावनामृत में जब थोड़ा साल बीत जाता है अहंकारी बन जाते हैं, क्योंकि सब लोग प्रभु 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 बुला रहे, अहंकार आ रहे। वो ये समझता है सब लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं, सब लोग मेरे पीछे हैं, सब लोगों की मेरी जरूरत है। Nobody requires you as a person. What they require is the association. What association? Because you are going to give knowledge of Krishna taken from Bhagavad Gita as it is, translated with purpose by Srila. You're only a via medium. So this every preacher and every person must remember. So he acts only under the order of the master. और वो केवल अपने स्पिरिचुअल मास्टर के जो आदेश है उसके मुताबिक वो अपना कार्य करता है। He simply discharges his duty faithfully in terms of the order of the Lord. और कार्य को वो भगवान का आदेश समझ के, भगवत गीता में जो भी दिया है भगवान का आदेश समझ के, जो प्रभुपाद ने आदेश दिया है उसको शिरसा साष्टांग एक्सेप्ट करते हुए, एक्सेप्टिंग इट कंप्लीटली, he will instruct. Now one may argue that Arjuna was acting under the personal direction of Krishna, but when Krishna is not present, how should one act? अर्जुन के सामने तो कृष्णा है, तो वो तो बोधन दे रहे हैं, मेरे सामने तो है नहीं, मुझे क्या करना है? If one acts according to the direction of Krishna in this book, प्रभुपाद जी बोल रहे, इस पुस्तक भगवत गीता आचार रूप एज इट इज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, तो इस पुस्तक में जो कृष्णा ने बोधन दिया है उसके आधार पे हम कार्य करेंगे, तो एज वेल एज अंडर द गाइडेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, और कृष्ण के प्रतिनिधि के आदेश जब हम पालन कर रहे हैं शीला प्रभुपाद जी का, जो एक शुद्ध भक्त है, देन द रिजल्ट विल बी द सेम। तो जैसे अर्जुन को लभ्य था कृष्ण का personal association, when I read Bhagavad Gita, I am getting personal association of Krishna because there is no difference between Krishna and Bhagavad Gita. Bhagavad Gita और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद प्रभुपाद के भावार्थ में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो मूर्ति है, प्रभुपाद के पिक्चर है, कोई अंतर नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। So Matpara is very important. It should be aligned with Krishna. That's what it means. Matpara means being aligned with Krishna. One has no goal in life save and except acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. तो और कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है भक्त के लिए। क्या है उसका उद्देश्य? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। Now Prabhupada clarifies what is that कृष्ण भावनामृत में कार्य करना? Just to satisfy Krishna. जो भी कार्य हम कर रहे हैं हमारी तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की तृप्ति के लिए करना, ये है कृष्ण भावना अमृत। देन while acting in such a way one naturally has to think of Krishna. कृष्णा के आदेश का पालन मतलब कृष्णा के बारे में सोचना अनिवार्य है। while acting, that is perfect Krishna consciousness. तो ऐसे मैं कृष्णा के बारे में सोच रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, ये परफेक्ट मतलब परिपूर्ण कृष्ण भावना। आफ्टर डूइंग समथिंग whimsically he should not offer the result to the supreme lord. ऐसा नहीं कि अच्छा कृष्णा के बारे में सोच के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नो,
You should think of Krishna and you should act according to Krishna's instruction. कृष्णा ने जैसे आदेश दिया है वैसे हमें कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं कुछ करूंगा फिर कृष्णा को अर्पण कर दूंगा, वो कृष्ण भावनामृत हो गया। नॉट अलाउड। सो दैट सॉर्ट ऑफ ड्यूटी इज नॉट इन डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भक्ति नहीं कहलाएगा। वन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ कृष्णा। बार बार आप देखिए इसी पर्पट में प्रभुपाद ने 5 बार बोल दिया। और एक्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ कृष्णा, रिपीटिशन रिपीटिशन। So that is the only way Kali Yuga Badja Jeevi like us will understand. So that order of Krishna comes through disciplic succession. और कृष्णा का आदेश हम तक कैसे पहुंच रहा है? परंपरागत प्रभुपाद के मार्ग से हमें आ रहा है। तो थ्रू द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु। और प्रामाणिक गुरु कौन है? केवल शीला प्रभुपाद जी हमारे लिए इस्कॉन में शीला प्रभुपाद जी दीक्षा दे हैं। Therefore, the spiritual master's order should be taken as the prime duty of life. तो गुरु का आदेश को जीवन का परम लक्ष्य, परम प्राइम ड्यूटी मीन्स नॉट ओनली परम लक्ष्य, द ओनली ड्यूटी ऑफ मैन। तो क्या प्रभु हम परिवार छोड़ दें? जो अभी हम कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, माँ है, बाप है, दादाजी है, दादी है, नाना है, नानी है, ये सब छोड़ दें? स्कूल जाना छोड़ दें हम? कॉलेज जाना छोड़ दें? नो, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स। कृष्णा इज टेलिंग माम अनुस्मर युद्धचा, डू योर ड्यूटी, कीप थिंकिंग ऑफ मी। थिंकिंग ऑफ मी मीन्स फॉलोइंग कृष्णा's ऑर्डर। So he acts according to his direction, then this is the perfection of life in Krishna consciousness. And this perfection of Krishna consciousness is guaranteed. कृष्ण भावनामृत में परिपूर्ण होने का प्रभुपाद गारंटी दे रहे हैं। इज गिविंग अश्योरेंस। हम सब, आप सब कृष्ण भावनामृत में 100% परिपूर्ण बन सकते हैं। कैसे? विल रीड द सेंटेंस अगेन। इफ वन गेट्स अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जब मिलेंगे। दूसरा, एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, और गुरु के बोधन, गुरु के प्रवचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। देन हिज लाइफ, then the perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. गुरु का आदेश को सिर पे लेते हुए उसका आदेश का पालन करना, यही हमारी परिपूर्णता का मार्ग है। We'll move ahead and go to the next shloka, shloka number 58. So what does Krishna now tell in shloka number 58? We're coming to the cream of Bhagavad Gita now, the cream knowledge of Bhagavad Gita. मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यति विनङ्क्षसि। Krishna is telling one advice and Krishna is giving one warning also. तो कृष्णा खुद ये वार्निंग हमें, चेतावनी हमें दे रहे। क्या है ये? मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि। इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, मच्चित्ता, मेरे कृष्ण 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 भावनामृत में अभी हम मग्न हो जाएंगे, तो यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ कंडीशनल लाइफ, सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि। तो भौतिक जगत के सारे बंधन अड़चन जो है, सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि, उससे पार हो जाएंगे। कैसे होंगे? कृष्णा इज रिमाइंडिंग अगेन। फिर ये मत सोचना तो अपने बलबूते पे, अपने इंटेलिजेंस से, बाय माई इंटेलिजेंस, बाय योर इंटेलिजेंस, बाय योर स्ट्रेंथ, बाय योर ग्रेट वर्क, मत प्रसादा। कृष्णा इज रिमाइंडिंग अस अगेन, डोंट गेट फूल्ड टू थिंक दैट इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ माई प्रसादा, माई मर्जी। यू विल पास ओवर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ कंडीशनल लाइफ बाय माई ग्रेस। इसलिए हम आध्यात्मिक गुरु को हिज डिवाइन ग्रेस पुकारते हैं। हिज ग्रेस, तो अपने मर्सी, हिज डिवाइन ग्रेस, वो अपना जो मर्सी है, ग्रेस है, कहाँ से लेके आ रहे हैं? कृष्ण से, डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा। तो दे आर गेटिंग इट फ्रॉम कृष्णा।
संसार दावनाल लीद लोक प्रणय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण. तो प्राप्तस्य, he is getting all these powers, spiritual master from where? From the Supreme Lord. So करिष्यसि, he will pass over. अगर ऐसे नहीं करेगा तो अथ चेत्वम अहंकारा, अगर तुम सोचोगे मैं अपने आप कर लूंगा, अब कृष्णा का बोधन मुझे समझ में आ गया, नाउ आई विल डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, देन व्हाट कृष्णा इज टेलिंग, इफ यू डू नॉट वर्क इन सच कॉन्शियसनेस, if you don't think Krishna is your maintainer, if you don't think that Krishna is, because of Krishna's grace, things are happening in our life, then, but act through false ego, ahankaran, not hearing me, nashroshasi, मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो विनंशसी, विल बी लॉस्ट, नष्ट हो जाएगा सब कुछ. दिस कृष्णा इज गिविंग अस अ वार्निंग. सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल in Krishna consciousness. Hare Krishna, Hare Krishna. So we'll go ahead and read the purport. A person in full Krishna consciousness is not unduly anxious to execute the duties of his existence. तो अपने देख रेख के लिए, अपना निज जीवन के लिए, he is not very anxious. तो आतंक में नहीं है. Don't worry, chant Hari. Krishna is now telling. Chant Hari means what? उनके बारे में सोचना, उनका जपा करना. दिस इज चैंट हरि. So what is Krishna telling? That will be free. Prabhupada is telling in the purport, free from anxiety, आतंक से मुक्ति, भय से मुक्ति. भय और आतंक नहीं है तो चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि मुझे मेरा देखभाल करने वाला, देयर इज अ सुप्रीम पावर हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी. In Krishna consciousness, Lord Krishna becomes the most intimate friend. ऐसे व्यक्ति का कृष्णा एक एक बहुत ही समीप वाला मित्र बन जाते हैं. Krishna considers him as his friend. As we move ahead in the last few shlokas, Krishna brings out that theme. He always looks after the friend's comfort. और ये ऐसा मित्र है, कृष्णा ऐसा मित्र है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका देखभाल करूंगा. आई विल मेंटेन यू. तो he will not only he will look after our basic needs, he will also look after our comfort. He gives himself to his friend. Krishna is a perfect friend. वो अपने आप को कृष्ण भक्त के हवाले कर देगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ भक्त वत्सला. भक्त के हवाले हो जाते हैं. तो as soon as he acts in Krishna consciousness, he is liberated and freed from material perplexities. तो कृष्ण भावनामृत में जब वो कार्य करना प्रारंभ करेगा, ऐसा नहीं कि एक महान भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है तभी. कृष्णा इज टेलिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम विथ यू. सो व्हेन यू आर चैंटिंग, व्हेन यू आर डूइंग सर्विस, बहुत सारे लोग मंदिर जाके सर्विस करते हैं, कृष्णा इज विथ यू बिकॉज यू आर डूइंग कृष्णा कॉन्शियस वर्क. Don't think it is ordinary. Don't think it is some mundane thing coming and doing service in the temple. कुछ लोग हरिनाम मंडप में है, कुछ लोग गीता काउंटर में, कुछ लोग कृष्णा लाइव डेस्क में, कुछ लोग स्वीट काउंटर में है. स्वीट काउंटर ऑल्सो. क्या आप क्या वहां पे दे रहे हो लोगों को? कृष्णा प्रसाद, नॉट ऑर्डिनरी. सेल्स काउंटर, सेल्स काउंटर में ये भावना में नहीं जाना है कि अरे प्रभु ने मुझे सेल्स में डाल दिया, सेल्समैन बना दिया. क्या सेल कर रहे हैं आप? क्या व्हाट आर यू पुशिंग? पैराफेरनेलिया ऑफ कृष्णा. कृष्णा का तुलसी माला, कृष्णा का मूर्ति, कृष्णा, एंड ऑल द मनी दैट इज बीइंग जनरेटेड देयर, कहाँ पे यूज होगा? मंदिर की देख रेख में. So how can it be just sales? If it is sales, it is the greatest sale. It is the best type of sale. अगर सच में सेल्समैन बनना है तो उस सेल्स काउंटर में सेल्समैन बनना है. That is real sales, and that is the topmost type of sales. क्योंकि वो आध्यात्मिक हमें प्रतिफल देगा. It gives us material सुकृति by doing, I mean not only material सुकृति, आध्यात्मिक सुकृति, कृष्णा का आशीर्वाद मिलेगा मुझसे. तो
We'll move ahead. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. One who is not active in Krishna consciousness is losing himself in the material whirlpool. ना मैं ये बात इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं जब सर्विस डालते हैं फेस्टिवल में, तो वो आपने सेल्स काउंटर दे दिया, तो मुझे कुर्ता सेल करना पड़ेगा, मुझे सेंट सेल करना पड़ेगा। अरे तुम कुर्ता सेल करोगे तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? कृष्णा के खजाने में जा रहा है। वो पैसा किस लिए यूज होगा? कृष्णा के वो आरती में यूज होगा। इज बीइंग यूज्ड फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो प्रभु अब पादुका सेवा में क्या, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इन पादुका सेवा? आपको पता होना चाहिए। गुरुद्वारा में दैट वन थिंग वी शुड अप्रिशिएट अबाउट द पंजाबीज, गुरुद्वारा में लोग लड़ते हैं पादुका सेवा पाने के लिए। लोग भक्त का पादुका वो अपने हाथ में लेते हैं, अपने हाथों में वो रैक में लगते हैं, और वहां से वापस वो अपने हाथों से उस भक्त को देते हैं। तो दिस मीन्स दैट दे गिव दैट मच वैल्यू फॉर इट। वो उसको नीच काम नहीं समझते, एंड इट हेल्प्स देम बिकम वेरी हम्बल। बिग बिग कंपनी चेयरमैन, Punjabi chairmen, they go to Gurudwara and they do this seva, Paduka seva, so that they remain very humble. When we do all these services, no, it helps us become very humble. So humility is very important in Krishna consciousness. So you should not only keep doing only Gita counter service, Harinam Mantap service, TL desk service. You also do sweet counter service. You also do sales counter service. You also do Paduka seva. पूछ पूछ के जाना चाहिए आपको। तो दैट बाय दैट वे वी बिकम प्योर, वी बिकम humble, which is very much required for Krishna consciousness. हरे कृष्ण। बट यस, आपको जो सेवा अलोकेट हुआ है वो सेवा आप कीजिए। ऐसा नहीं कल से आप लड़ेंगे मुझसे और सदानंदिनी से, पादुका सेवा चाहिए, पादुका सेवा चाहिए। पादुका सेवा का ऑप्शन रहेगा फेस्टिवल में, और टर्न बाय टर्न, I and Sadanandini also, turn by turn we make sure that people get पादुका सेवा। आपने देखा होगा कभी, हमेशा हमने आपको गीता काउंटर में नहीं डाला फेस्टिवल में, नॉट ऑलवेज इन सेल्स काउंटर, नॉट ऑलवेज इन स्वीट काउंटर, वी कीप rotating because we want people to develop this particular attitude further. A person who acts in Krishna consciousness is free to act because everything is prompted by Krishna from within and confirmed by spiritual master. और जो हमारे सिक्स्थ सेंस है, इट इज बीइंग गाइडेड बाय कृष्णा, इट इज बीइंग गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रभुपाद। So that way, we are always doing the right thing. Otherwise, in the material whirlpool, we will get simply lost. We'll try to fit in one more sloka in about 5 minutes time. Let's try to fit in one more sloka. Sloka number 59. Then, because Krishna is now telling, अहंकार में कोई स्थित हो गया, विनश्यति तो होगा, फिर क्या होगा? यद अहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। So what is the meaning of this? If you do not act according to my direction, यद अहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यते, मेरे मार्गदर्शन में यदि आप कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण बता रहे, यू विल बी फॉल्सली डायरेक्टेड, मिथ्या ऐसा व्यवयास्ते। तो आप भौतिक जगत में काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो मिथ्या ही बस, टेक यू अवे फ्रॉम मी, टेक यू अवे फ्रॉम कृष्णा, इट मेक्स यू मोर एंड मोर मेटेरियलिस्टिक, डूब जाएंगे भौतिक कार्य करते करते। फिर बाय योर नेचर यू हैव टू बी एंगेज्ड इन वॉरफेयर, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारा, अगेन इज टेलिंग अर्जुना, तुम्हारा स्वभाव क्या है? योद्धा, तुम क्षत्रिय हो, स्वभाव है युद्ध करना, धर्म युद्ध है, ये सही है, तो आप युद्ध करो। अगेन कृष्णा इज अश्योरिंग अर्जुना, डोंट वरी, ये आप सही कर रहे हो, ये युद्ध लड़के आप मतलब मेरा आदेश का पालन कर रहे हो, इट इज नॉट ए सिन। बट अर्जुना इज थिंकिंग मैं कोई अभी पाप करने वाला हूँ, अपने ये लोगों को मारने वाला हूँ, अभी वो अपने लोग नहीं है, शत्रु है,
क्योंकि वो अधर्म का साथ दे दिया। तो अधर्म का साथ जो दे दिया, तो वो कभी मित्र नहीं बन सकता, कभी संबंधी नहीं है, वो शत्रु है, समाज का शत्रु है, हमारा शत्रु है। और कृष्णा ही इस युद्ध का योजन बना के बैठे हैं, क्योंकि दुर्योधन ने मजबूर किया। दुर्योधन ने बोला कि नहीं हो सकता, युद्ध ही लड़ना है। और हाँ, और क्योंकि भक्तों का संरक्षण करने के लिए खुद कृष्णा इसका नियोजन कर चुके हैं। सी हाउ कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग हियर ऑल्सो, इन वॉर ऑल्सो कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग द डिवोटी, बिकॉज सारा नियोजन कृष्णा ही कर चुके हैं। 11वें अध्याय में हमने देखा कि अर्जुना बोल रहे, मैं देख रहा हूँ ये सब लोग आपके कराल मुंह के अंदर जा रहे हो, और आप चूर्ण तैर उनको चबा रहे हो, मार रहे हो मृत्यु बन के। So already it is decided all the enemies of Pandavas, all the enemies of the devotees are going to get destroyed, and the devotee is going to get protected. तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि is flourishing, the enemy is flourishing, but in the final run, Krishna's devotee will always be protected, and he will come victorious, and he will be able to overcome all the enemies. So the Supreme Person of Godhead gives directions as to what is good and what is bad, and one simply has to act in Krishna consciousness to attain perfection of life. बस कृष्ण अर्जुना ने पहले अध्याय में क्या बोला था? वो मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे तात, मेरे गुरु, मेरे मेरे पिता समान लोग हैं, कैसे मैं मारूंगा? कृष्णा इज टेलिंग अब वो सब नहीं रहे, अधर्मी है, अधर्मी का कोई संबंध नहीं रखना है। इज नॉट पिता, नो पिता मतलब जो आपको सही मार्ग दिखाएगा, वो अधर्मी के साथ खड़ा है, कैसे पिता है? भीष्म पितामह अधर्मी, अधर्म कर रहा है, तो कैसे पितामह है? अब तो उसको क्षमा नहीं करना है। तो जो युद्ध में करना है वो करना है। युद्ध में योद्धा अपने शत्रु को मारने की ही कोशिश करेगा, ऐसा नहीं कि बाण छोड़ेगा और सोचेगा अरे इसको घाव लग जाएगा, थोड़ा धीरे छोड़ूंगा। वो मारने के लिए ही छोड़ेगा। So he's telling the right way is to kill them. So don't be disturbed. So the right way is to keep doing the material duties that you have, but by being Krishna conscious. ऐसा नहीं है कि माँ होना बंद करना है, पिता होना बंद करना है, गुरु होना बंद करना है, कॉलेज के टीचर है और बंद करना है मुझे, अब जाके मुझे इसका प्रवचन देना है। नो, नॉट लाइक दैट। That doesn't mean you keep teaching your students, but you also teach them about Bhagavad Gita. Inspire them to follow Bhagavad Gita. Yeah, duties. The best course is to take direction from Supreme Lord and act. So if no one can ascertain his destiny as the Supreme Lord can, तो हमारे भाग्य का धाता विधाता कृष्ण भगवान है, तो हमें अपने आप को कृष्ण के समर्पण कर देना है। तो तब क्या होगा? That is the best course, and that is the best direction. The best direction is to take direction from Lord Krishna and act accordingly. One should act unhesitatingly to execute the order of the Supreme Personality of Godhead. बिना चिंता किए, कृष्णा का चिंतन करते हुए कृष्णा का आदेश का पालन करना चाहिए, तब that will keep him safe under all circumstances. हर संदर्भ में भक्त सुरक्षित रहेगा। रक्षित यदि विश्वासा. What is that Vishwasa? Following Krishna's order and becoming his devotee. Becoming his devotee and following his order. So you are always constantly assured of protection of Krishna. So thank you very much for joining me today. Unfortunately, we are not able to do the class yesterday. And tomorrow onwards, the Ashraya classes will start. So we'll be meeting next week. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Any questions are there? I'll be on WhatsApp for the next 20 minutes for answering your questions. You can send me questions as much as possible. I'll answer now.